welcome for the lecture. Today we will be studying the business environment. बिजनेस एनवायरमेंट जैसे कि हम लोगों ने एनवायरमेंट शब्द को पढ़ा है, एनवायरमेंट के सब्जेक्ट को पढ़ा है. सो इट कंस्टिट्यूट्स ऑल द कंपोनेंट्स, ऑल द फैक्टर्स दैट मे इन्फ्लुएंस द होल सिस्टम either directly or indirectly. So same conceptual understanding is in the terminology business environment. Yes, so business environment is the study of collection, some collection of the internal and external factors to the business which controls and which influences the business either directly or indirectly. इसमें फिर आपके एम्प्लॉयज आ सकते हैं, आपके कस्टमर्स है, उनका नीड है, एक्सपेक्टेशन है, सप्लाई या डिमांड हो सकता है, साथ ही साथ मार्केटिंग हो सकता है, या फिर गवर्नमेंट का कोई एक स्पेसिफिक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी हो सकती है, या फिर गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हो सकते हैं. सो जैसे कि हम लोगों ने थोड़े टाइम पहले ही एक एग्जांपल लिया था कि किस तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसी आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती है. As I said, as we discussed, business environment में सारे factors एक दूसरे को influence करते हैं. तो let us take an example जो हम लोगों ने थोड़े टाइम पहले ही बोला था कि गवर्नमेंट ने अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर के रेगुलेशंस बढ़ा दिए हैं, अगर इंपोर्ट के रेगुलेशंस उन्होंने बढ़ा दिए, एक्सपोर्ट के घटा दिए हैं. सो नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रमोटिंग द एक्सपोर्ट and you are into the business of export. So of course you are getting more and more opportunities. Yes, of course you are getting more and more opportunities. So आपका business government के एक policy से influence हो गया. On another hand, if government of India have curtailed the import of the country और उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारे rules and regulations लगाना शुरू कर दिया है, now what is going to happen? Yes, what is going to happen? If your business is of import, your business is going to get affected. Your business is going to get affected. So this is how a single component of the business, which could be either inside the business, which could be either outside the business, in-house हो सकता है या out-house हो सकता है, तो इस तरीके से वो influence करता है. इस तरीके से वो इन्फ्लुएंस करता है. टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के बारे में भी हम लोगों ने देखा था कि अगर समझिए कंप्यूटराइजेशन सिस्टम हो रहा है and if your employees are outdated, they are still on working on the typewriters, then technological innovation पूरे इंडिया में हुआ है. So it is external factor, but still it is affecting your internal factor, so called as your customer. ये इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में हम लोग फिर से आगे पढ़ते हैं. सो दिस इज हाउ आपका एक चेंज, एनी चेंज इन अ सिंगल फैक्टर इज अफेक्टिंग द अनदर फैक्टर. सो इसका स्टडी करना लमसम में और इंडिविजुअली इज नथिंग बट स्टडीइंग द बिजनेस एनवायरनमेंट. नाउ एज we have been repeating कि इसके दो पार्ट होते हैं, either internal and external. We are going to study it. So internal factors को अगर हम लोग शॉर्ट में पढ़ेंगे, so all those components which are in house to the business are under the head of internal environment. और ऐसे सारे components जो business के outside है लेकिन they are still affecting the business are under the head of external environment. Let us study it individually and thoroughly. तो जैसे कि हम लोगों ने अभी कहा इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या आएगा, तो इंटरनल एनवायरनमेंट में सारे इन हाउस फैक्टर्स आएंगे which are affecting the constitution, basically the constitution, constitutional nature of the institution. तो इसे हम लोग इंटरनल एनवायरनमेंट के अंडर क्लासिफाई करते हैं. एंड ऑन अनदर साइड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या में क्या आएगा, ऐसे सारे बाहर के फैक्टर्स जो कंपनी के फंडामेंटली फंक्शनिंग पे और परफॉर्मेंस पे अफेक्ट करते हैं. Yes, so later on we are going to study the comparative understanding of internal and external environment, where we will be going through all these points in detail. So किसी भी कंपनी के इंटरनल एनवायरनमेंट में या फिर किसी भी बिजनेस के लिए इंटरनल एनवायरनमेंट में ऐसे सारे फैक्टर्स आएंगे जो कि कंपनी के अंदरूनी हिस्सा बनता है. सो हम इसमें क्या आ सकता है, इसमें कंपनी का मैनेजमेंट परफॉर्मेंस आएगा, मैनेजमेंट सिस्टम आएगा, कंपनी के एम्प्लॉयज आएंगे, कंपनी के एचआर पॉलिसीज आ सकती है, कंपनी की फाइनेंशियल पॉलिसीज आ सकती है, कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, मार्केट, ये सारी चीजें हम लोग इंटरनल फैक्टर्स में, इंटरनल एनवायरनमेंट में कंसीडर करते हैं.
और ये सारे ऐसे चीजें होती है, एक तो ये फैक्टर्स हो सकती है, ये तो इवेंट्स हो सकते हैं, या फिर ऐसे कोई हम लोग बोलेंगे कि मेंबर्स हो सकती है, फोर्सेस होती है जो कंपनी के डिसीजन या ऑपरेशन पे अफेक्ट करते हैं. Now, how the events could be classified into the head internal environmental event or external environmental event? Yes. So आपके कंपनी में एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में आग लग गई. दिस इज गोइंग टू बी अ इंटरनल इवेंट. दिस इज गोइंग टू बी अ इंटरनल इवेंट. आपके कंपनी में सीईओ चेंज हो गया. आपके कंपनी में सेंट्रलाइज मैनेजमेंट से डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम आपने अडॉप्ट कर लिया. So all these are what? These are the internal events of the company. Or rather than earlier you were adopting the LIFO system in your store management of the company. Now you have started the FIFO system or average system of maintaining the storage. So these are the internal events that are affecting company का decision और company का overall operation system. और जब हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, तो ये सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसे फैक्टर्स होते हैं, those are extrinsic to the company. Those are outside the company and those affects ये ऐसे सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कंपनी की आउटर बाउंड्रीज में होते हैं, but still they are having the significance on the operation performance on overall profitability and the moreover survival of the business enterprise. वंस अगेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर हम लोग एग्जांपल लेंगे तो कंपनी गवर्नमेंट की एक सिंगल पॉलिसी की वजह से अभी कंपनी के सर्वाइवल पे इश्यू आ गया, क्योंकि हम लोगों का इंपोर्टेशन का बिजनेस था और हमारी गवर्नमेंट में, कंट्री गवर्नमेंट में इंपोर्टेशन पे काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं. नाउ इट इज गोइंग टू बी मोर कॉस्टली फॉर द बिजनेस टू इंपोर्ट द आइटम्स, इंपोर्ट द प्रोडक्ट्स. So this is how all these factors which are outside can still significantly affect the inside operation of the business. अभी जब हम लोग इसको कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे, सो एज वी सेड कि इंटरनल फैक्टर्स में ऐसे सारी फैक्टर्स आएंगे, इंटरनल एनवायरनमेंट में से सारी फैक्टर्स आएंगे. Those are inline forces and conditions present within the company, जो कंपनी के अंदरूनी हिस्से में है. और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आउटसाइड द या फिर एक्सोजेनियस या एक्सटर्नल फैक्टर्स टू द कंपनी. एज वी सेड कि इंटरनल फैक्टर्स में आपका मैनेजमेंट आएगा, आपका प्रोडक्शन सिस्टम आएगा, आपका एम्प्लॉइज आएगा. तो इनको कंट्रोल करना हमारे हाथ में है, इनको कंट्रोल करना हमारे हाथ में है. बट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारे हाथ में नहीं है कि हम लोग कंट्रोल कर पाए. कैन यू कंट्रोल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ एक्सटर्नल और एनवायरमेंटल फैक्टर? कैन यू कंट्रोल कि किस तरीके से सब्सिडीज दी जाएगी? कैन यू कंट्रोल व्हाट कुड बी द मूव ऑफ योर कॉम्पिटिटर? कैन यू कंट्रोल सम social movements? You cannot control the social movements. So all these are the external environmental factors which are uncontrollable. Another points that can make us to study the comparative understanding of internal and external environment could be the strength, weaknesses, opportunities, and the threats. So the factors which we can so by studying the internal environmental factors on constitution, one can get know what are the strengths and the weaknesses of the organization. हमारी HR policies अच्छी है, हमारा स्टाफ स्किलफुल है, ये हमारी स्ट्रेंथ हो गई. बट हमारा फाइनेंसेस पुअर है, हमारा प्रोडक्शन इन लाइन, हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस थोड़ा आउटडेटेड है. दिस इज गोइंग टू बी द वीकनेस. सो बाय स्टडीइंग द इंटरनल फैक्टर्स of environment, we can study what are the strengths and the weaknesses of our organization. On another hand, if we are having good understanding and the study of external environment, कि कौन सा political party अभी lead कर रहा है, वो पॉलिटिकल पार्टी का क्या एक मेन मोटो है, सो अकॉर्डिंगली वी कैन अंडरस्टैंड कि फ्यूचर में हमारे बिजनेस के लिए क्या पॉलिसीज है. If the political party is more focusing on the collaboration for foreign companies to invest in our country, so we can plan for so we can have the target or we can have the planning looking after these future opportunities. If the political party leading to the government of the country is on the verge of stopping the import, then we are in threat because we are more in the import of the
products. So depending upon the study of external environment, one can understand what could be the opportunities or the threats of the business. Now, for example, if those organizations who have the better understanding of global scenario, the external factor on the global level, तो उन्होंने पहले ही देखा होगा कि अभी काफी सारा कोविड-19 फैलने वाला है, या they might have understood, और उन्होंने शायद इसको पहले ही थोड़ा अंदाजा लगाया होगा. So उनको पहले ही समझ में आया होगा कि उनके बिजनेस के लिए क्या-क्या थ्रेट्स हो सकते हैं. Now, if they know what could be the threats for my business after 1 month, after 1 year, they can make changes in their business right now. They can make the changes in their business right now to minimize the effect of those threats. अगर आपको पता चल रहा है you are into the online business and now you have realized कि कोविड के टाइम में मेरा बिजनेस ऑनलाइन वाला बहुत चलने वाला है, so you know what are the opportunities in the near future and you can start working on them right now. Yes. So by studying the external environment, one can understand what are the opportunities or the threats for my business. So जो भी external environment का एक constitution change होता है, it is going to affect the entire industry. It is going to affect the entire industry and all the companies in that industry. For example, medication industry ले लो, medicine industry ले लो. Single COVID have affected the whole industry, medical industry. The single COVID have affected the whole education industry. Yes. बट इसी के साथ में हम लोग अगर कंपनी के इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे, तो अगर XYZ कॉलेज का कोई इंटरनल सिस्टम में कोई चेंज आ गया, या फिर उन्होंने ऑन द स्पॉट नया, या फिर एंड टाइम पे उन्होंने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में सोचा और इसके वजह से वो कॉलेज का इंटरनल 1 हफ्ते से डिले हो गया, क्या इसका इफेक्ट दूसरे कॉलेजेस के इंटरनल पे पड़ेगा? क्या इसका इफेक्ट दूसरे कॉलेजेस के प्रैक्टिकल्स पे पड़ेगा? नो, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट. So the internal environmental changes or internal environmental components can have the effect on the company only, on the company or the business only. And therefore, this internal environment bears the strategy, business strategy, functions and decisions. Whereas external environment किसी भी बिजनेस के सर्वाइवल के लिए, किसी उसके ग्रोथ के लिए, रेपुटेशन के लिए एंड मोर ओवर उसके एक्सपांशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है. Yes, so this is the comparative study of internal environment and external environment. I hope we all have understood the differences between both of this, and we are now in a good position to understand individual concepts as well. Okay, so we will be quickly going to the next topic, which is the study of some important components in the business environment, जिसके बारे में हम लोग एक्चुअली बात किए हैं एग्जांपल्स के थ्रू, बट अभी हम लोग उसको फिर से थोरोली शायद एक बार स्टडी कर लेंगे. तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो बिजनेस एनवायरनमेंट के मायने से हम लोगों को स्टडी करने चाहिए, दोज आर लिस्टेड हियर. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल या लीगल एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट. सो द वेरी फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द economic environment. So of course it is going to have a significant impact on the company's profitability. Agar economic environment is comfortable or is supportive to the business that you are in, अगर आपका बिजनेस है जूट से बनाने कोई ऑर्नामेंट बनाना है, सॉरी नॉट ऑर्नामेंट बट जूट से बनाने का कोई प्रोडक्ट, इसमें आपका बिजनेस है, योर कंपनी इज इनटू द जूट मैन्युफैक्चरिंग, नॉट आर्टिकल मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम द जूट, और अगर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज favorable to this business, to this industry, of course you are going to have a significant impact on your company's profitability. On other hand, अगर आपके बिजनेस के लिए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फेवरेबल नहीं है, आपके बिजनेस के लिए फाइनेंशियली आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अगर बाकी के इकोनॉमिक हिस्से के बारे में हम लोग बात करेंगे, मार्केटिंग वगैरह सभी एक्चुअली इकोनॉमिक की कंपोनेंट्स हम लोग इंडिविजुअली स्टडी करेंगे, तो सो ऑफ कोर्स योर कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी इज गोइंग टू गेट इन्फ्लुएंस. इसके साथ ही हम लोगों का परचेसिंग पावर है, या फिर कैपिटल इनकम है, क्रेडिट फैसिलिटी, जैसे कि हम लोगों ने बोला कि अगर आपके जूट इंडस्ट्री को अगर फाइनेंशियल सपोर्ट ज्यादा मिल रहा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तरफ से, सो ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर
कंपनी का प्रोडक्शन, आपका परचेसिंग पावर, अगर आपका फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है, आपको फाइनेंस बाहर से क्रेडिट पे मिल रहा है, तो यू हैव अ गुड परचेसिंग पावर फॉर द रॉ मटेरियल्स, एंड सो आपका रॉ मटेरियल के ऊपर का एक्सेसिव कॉस्ट बचेगा, एंड इट विल अफेक्ट योर सेविंग हैबिट, और आपका फाइनल प्रोडक्ट का कॉस्ट भी उसमें काफी इन्फ्लुएंस होगा. So this is how the economic environmental factors have the impact on the company. इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल और लीगल एनवायरमेंट. जैसे कि थोड़े टाइम के पहले हम लोगों ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में भी पढ़ा था. सेम एग्जांपल इज रिगार्डिंग द पॉलिटिकल लीडरशिप. अगर कोई पॉलिटिकल लीडरशिप ऐसी फिलहाल कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जो एक खादी स्पेसिफिक इंडस्ट्री को प्रमोट करने में है, फॉर एग्जांपल कि बहुत लेटेस्ट एग्जांपल है कि पीएम मोदी जी का लीडरशिप जब कंट्री में आया, ही स्टार्टेड प्रमोटिंग मेनी अनसेंट साइंसेस. योगा है, बहुत सारी जनरल रूरल डेवलपमेंट है, उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारा फोकस किया. सो ऑल दोज इंडस्ट्रीज, ऑल दोज कंपनीज, बिजनेसेस हु आर इनटू द सिमिलर लाइन ऑफ दिस फील्ड्स, they have already gated, or they have already have had impact, the positive or the negative impact of this changes in the political and legal environment. So इस हिसाब से कंपनी के डिसीजन में भी चेंज होता है, कंपनी को क्या नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी या फिर कंपनी के लिए क्या नए थ्रेट्स हो सकती है, इसमें भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि हम लोगों ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के एग्जांपल में भी देखा है. इसके साथ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का भी इस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि नाउअडेज टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी और एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर डेली रूटीन इज नाउ inseparable. सो किस तरीके से कंपनी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में एनहांसमेंट हो रहा है, अपडेशन हो रहा है, उस हिसाब से हमारी कंपनी का भी total functioning, performance and decisions, everything is going to be changed. And now अगर किसी कंपनी ऐसी एक nowadays the technological updation is like a race. आप आज देखते हो कोई मोबाइल आज लॉन्च हुआ है, आप आज उसको ऑर्डर करते हो, 2 दिन के बाद आपके हाथ में आता है. जिस दिन कुरियर आता है उसी दिन आपको मैसेज भी आता है, कुरियर इज डिलीवर्ड, और नीचे मैसेज आता है कि आज ये नया फोन लॉन्च होने वाला है, इसके साथ ये नई टेक्नोलॉजी है. So now being in a race of the technology is a more difficult, but it is a part of your inseparable part of your today's success. Yes. So any company who would like to be in the market, would like to be in the profit without wasting their time, money and efforts, they have to be in the top in terms of the technological enhancement and the updatation. Otherwise it could be the failure for the company, because it is the call of every company to keep themselves updated with the changing technology. What happened with the Nokia? What happened with the Nokia? There was a time जब Nokia का मोबाइल बहुत चलता था, Nokia का ही चलता था. Now अभी क्या हुआ, कहीं तो भी वो गुम हो गया Nokia. This is why, because of they were not able to keep the pace with the updating changing technology. Yes. So the last factor that we are going to study under this head is the socio-cultural environment. We didn't had example of this environment yet. So first of all, let us study what is the constitution of socio-cultural environment. तो इसमें सारे ऐसे human relationship, for example, कोई custom है, tradition है, beliefs है, value और moral है, जिससे हम लोगों की society का एक large level पे preference बनता है. तो ऐसे सारी चीजों को socio-cultural environment में हम लोग study करते हैं. So every company has to study this matter, these factors, when they are advertising their product, when they are hiring their employees, or whenever they are making any decisions. चलिए हम लोग बढ़ते हैं एम्प्लॉयज के हिसाब से. अगर कोई ऐसा जियोग्राफिकल एरिया है जहां पे आपकी कंपनी आपको ऑपरेट करनी है, फॉर एग्जाम्पल योर कंपनी इज रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र, बट यू हैव वन ब्रांच इन द कर्नाटका, इन सम रूरल पार्ट ऑफ द कर्नाटका, तो वहां पे आपको मराठी पीपल एम्प्लॉय करके नहीं चलेगा, वहां पे आपको इंग्लिश वाले पीपल एम्प्लॉय करके नहीं चलेगा. देयर इफ यू वुड लाइक टू एग्जीक्यूट योर बिजनेस एक्टिविटी, यू हैव टू हायर द लोकल पीपल who can talk in their local languages, regional rural languages. Otherwise you won't be able to make business there, you won't be able to make production there, you won't be able to market your products there. So depending upon the socio cultural environment, one has to hire the employees. Let us take an example of advertising product. Now
आपने अमूल का भी एक एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, होली का, दिवाली का. According to the occasion or according to the festival, they keep changing the advertisement. Product is same, but their method of advertisement is different. Yes, दिवाली का सीजन आ गया तो कैडबरी सेलिब्रेशन दिवाली मनाती है. भाई दूज का आ गया तो कैडबरी सेलिब्रेशन भाई दूज बनाती है, उस हिसाब से उनके एडवर्टाइजमेंट्स आती है. राइट, होली का सीजन है तो भी कैडबरी सेलिब्रेशन है. सो एवरीथिंग, everywhere, every festival, they are making advertisement of their product according to the change in the time, according to the change in the cultural beliefs, cultural interest of that period. So this is how कंपनी का डिसीजन भी चेंज होता है, कंपनी का प्रोडक्ट भी थोड़ा चेंज होता है. फिर कैडबरी सेलिब्रेशन के ऊपर फटाके आते हैं जब दिवाली आती है तब, राइट. जब होली आती है तब कैडबरी सेलिब्रेशन के पैकेजिंग पे कलर्स आ जाते हैं. सो दिस इज हाउ योर एवरी प्रोडक्ट, राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, कंपनी के डिसीजन से, एडवर्टाइजमेंट से, एवरीथिंग गेट चेंज. सो दैट्स इट. सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट का कितना ज्यादा फर्क पड़ता है, इसका एकदम सच्चा ट्रू एग्जांपल जो हमारे इंडियन पीपल ने एक्सपीरियंस किया था, दैट वाज एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स. जब ब्रिटिशर्स वर्ल्ड वॉर चल रहा था, एंड व्हेन दे imported some bullets की जिसके ऊपर पोर्क और बीफ का ये लगा हुआ था. दैट टाइम lot of Hindu and Muslim people, Muslim army people from India, where उनका cultural और सोशियो कल्चरल ये बहुत अफेक्ट हुआ था. सो ऑटोमेटिकली ब्रिटिशर्स के खिलाफ तब बहुत ज्यादा मूवमेंट होने लगा था. सो इफ द कंपनी, इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन वुड लाइक टू सस्टेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड, दैट कंपनी हैज टू मेंटेन एंड वैल्यू द सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट ऑफ द मार्केट एंड द एम्प्लॉय. अगर मार्केट या फिर एम्प्लॉय का, दोनों में से किसी एक का भी सोशियो कल्चरल बिलीव्स हम लोग ये करते हैं, उसको धक्का पहुंचता है, उनके वैल्यूज को, उनके मोरल्स को, उनके टेस्ट को वैल्यू अगर धक्का पहुंचता है, सो फॉर अ कंपनी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन ऑन अ लॉन्गर पीरियड. Yes, so this was all about the business environment, and in the next lecture we are going to start the second chapter, which is all about the forms of business organization. अलग अलग business organization के क्या क्या forms हैं, वो उसके क्या क्या limitations है, क्या क्या benefits है, constitutions कैसा होता है, वो किसके लिए suitable है, किस प्रकार के organizations के लिए suitable है, that we are going to study from the next lecture and onwards.